Hello students, today we will read chapter 10 of your class 7 and the chapter name is My Father's Letter. Let's start with the chapter, students. Chapter 10 My Father's Letter. I still remember the 2 years that I spent with my father. They were probably the happiest days of my childhood, although for him, they must have been a period of trial and tribulation. Frequent bouts of malaria had left him physically weak, and at the age of 8 I was self-willed and demanding. He did his best for me. He gave me his time, his companionship, his complete attention. My father was truly the best in 1943. During World War II, Delhi was full of men in uniform. It was a splendid year, during which we had to change our residence at least 4 times, from a tent on a flat, treeless plain outside Delhi, to a hutment near Humayun's tomb, to a couple of rooms on Atul Grove Road, to a small flat on Haley Road, and finally, to an apartment in Scindia House, facing the Connaught Circus. We did not stay very long in the tent and hutment, but long enough for me to remember the scorching winds of June, and the Bishti's hourly visit to spray the khas matting with water. This turned a hot breeze into a refreshing, fragrant one for about half an hour. And then the dust and the prickly heat took over again. A small table fan was the only luxury in those days. My father went to his office in Air Headquarters, which was situated at India Gate. 6 days a week when he was in office, I was alone at home during the day. My father would return at about 6, tired but happy to find me in good spirits. For although I had no friends during that period, I found plenty to keep me occupied: my father's book stamps, the old gramophone, hundreds of postcards which had collected during his years in England, a scrapbook, albums of photographs, and sometimes he'd explore the jungle behind the tents. I still remember how I would have my lunch with a family living in a neighboring tent, but at night my father and I would eat together. I don't really remember who did the cooking, but father made the breakfast himself, and then laying the table with cornflakes or grape nuts and eggs, poached or स्टूडेंट, हमने फर्स्ट पेज रीड किया. ये क्या है? माय फादर के लेटर के बारे में है, जैसे कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो टाइटल से. तो रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है जो ब्रिटिश डिसेंट का, इसका मतलब ब्रिटिश के उसके पूर्वज रहे हैं, बहुत ही फेमस ऑथर रही है. ही रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी. उसको साहित्य अवार्ड भी मिला हुआ है बच्चों कि छोटी छोटी स्टोरीज लिखने के लिए. उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है. क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन था जो चिल्ड्रन लिटरेचर के लिए बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा रहा है. उन्होंने चाइल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा लिखा है बच्चे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन हिंदी. कि मेरे को अभी भी याद है 2 साल, वो 2 साल, कौन से 2 साल जो मैंने अपने पिताजी के साथ बिताए थे. वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे बचपन के. ये मेरे लिए भी थे और मेरे ख्याल से मेरे पापा के लिए भी होंगे. दे मस्ट हैव बीन अ पीरियड ऑफ ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन. वो किस चीज़ का पीरियड था? ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन. ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन का मीनिंग होता है बच्चे, ये आप जहाँ देख रहे हो, ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन का मीनिंग होता है सफरिंग्स. इसका मतलब उस दिनों में उनको उनके बहुत ही मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी, उन्हें सफरिंग झेलनी पड़ रही थी बच्चों. फ्रीक्वेंट बाउट्स होता है बच्चे पीरियड, टाइम पीरियड. क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड. तो अब वो क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंट बाउट्स, उनको जो मलेरिया था बार बार
लग रहा था, जिसके कारण उनके पिताजी क्या फिजिकली वीक हो गए थे, इसका मतलब कमज़ोर हो गए थे। और जब उनकी एज जो रस्किन बॉन्ड है 8 साल थी, तो वो क्या थे, सेल्फ विल थे और डिमांडिंग थे। डिमांडिंग का मतलब जो बार बार किसी किसी चीज़ की डिमांड करता हो। सेल्फ विल्ड का मतलब स्टबर्न, हिंदी में से बोलते हैं बच्चों जिद्दी। जिद्दी था वो और डिमांडिंग था बहुत। ही डिड हिज बेस्ट फॉर मी, उन्होंने, मेरे पिताजी ने मेरे लिए जो सबसे बेस्ट कर सकते थे वो किया। ही गिव मी हिज टाइम, उन्होंने मेरे को अपना टाइम दिया, मेरे साथी बने, मेरे को कंप्लीट अटेंशन दी। मेरे फादर हमेशा सबसे बेस्ट रहे हैं सच्ची में। 1943 में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी, दिल्ली जो थी वो क्या थी, मैन इन यूनिफॉर्म से फुल थी। मैन इन यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे है आर्मी, इसका मतलब जो दिल्ली थी वो आर्मी से फुल थी बच्चों। इट वॉज अ स्प्लेंडेड ईयर, वो बहुत ही सुंदर ये ईयर था, बहुत ही एडवेंचरस ईयर था। क्यों था, क्योंकि इस ईयर में उनको अपना रेजिडेंस घर चेंज करना पड़ा था 4 बार। पहले वो टेंट में रहते थे, फिर वो एक फ्लैट में गए, फिर एक ट्रीलेस प्लेन जहाँ पे बिल्कुल ट्री नहीं है, रेतीला इलाका, इसका मतलब बिल्कुल प्लेन पड़ रहा था दिल्ली के बाहर, वहाँ पे गए, हट में रहे हिमायू टॉम के पास, और कुछ कमरों में भी रहे अतुल ग्रुव रोड पे, और आखिर में टू अ स्मॉल फ्लैट ऑन हेली रोड। फिर हेली रोड पे एक छोटे फ्लैट में आए, और फाइनली एक अपार्टमेंट में आए जो सिंधिया हाउस फेसिंग द कनाड सर्कस, जो कनाड सर्कस को फेस कर रहा था। तो ये सारे स्टूडेंट जो घर हैं उन्होंने चेंज किए ये कुछ ही टाइम में, जो वो ईयर था 1943 में। वी डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग इन, उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों तक हम टेंट या हटमेंट में नहीं रहे, बट इतना तो रहे कि मेरे को याद है वो स्कॉर्चिंग विंड। स्कॉर्चिंग क्या होता है, स्कॉर्चिंग की हिंदी में कहोगे तो आप बर्निंग, इसका मतलब जो जून में गर्म जलती हुई हवा, इसका स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बर्निंग। जो जलती हुई हवा जून की थी वो मेरे को अभी भी याद है। बिस्टीज आर विजिट, जो बिस्टीज थे वो आते थे आर्ली विजिट, जो स्प्रे द काच मैटिंग विद वाटर, जो खास मैटिंग की स्प्रे करके जाते थे पानी के साथ। दिस टर्न्ड अ हॉट ब्रीज इनटू रिफ्रेशिंग एंड फ्रिक्वेंट वन, और ये जो गर्म हवा चल रही थी, ब्रीज का मतलब होता है हवा चल रही थी, उसको क्या ताजगी से भर देता था और खुशबू से भर देता था कुछ आधे घंटे के लिए। और फिर से बाद में क्या होता है, डस्ट और प्रिकली, प्रिकली क्या होती है, चुभने वाली गर्मी। प्रिकल वैसे कांटे होते हैं, तो यहाँ पे प्रिकली को क्या मीनिंग दिया है, चुभने वाली गर्मी। इसका मतलब जो चुभने वाली गर्मी थी वो फिर से आ जाती है थोड़ी देर में। वहाँ पे हमारे पास वो क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा टेबल फैन था, और वो ही हमारे पास लग्जरी थी उन दिनों में, सुविधा थी। जो मेरे पापा थे वो ऑफिस चल जाते थे, जो एयर हेडक्वार्टर्स में रहते थे, जो कि इंडिया गेट पे स्थित था। 6 दिन वीक में वो ऑफिस में जाते थे, और मैं घर पे अकेला रहता था। जो मेरे पिताजी थे वो 6 बजे आते थे, थके हुए होते थे और खुश भी होते थे मेरे को देख के कि मैं बहुत ही गुड स्पिरिट्स में हूँ, इसका मतलब ताजगी में हूँ, काम कर रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई दोस्त नहीं था उन दिनों, और मेरे को कुछ करने को भी नहीं था ज़्यादा, और मेरे जो बस ज़्यादा क्या था, मेरे पास चीज़ें, मेरे पापा की बुक्स, मेरे पापा की स्टैम्प्स, मेरे पापा का ओल्ड ग्रामोफोन, और 100 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड, जो कि मैंने कलेक्ट किए थे इस ईयर में इंग्लैंड में। और एक स्क्रैप बुक थी, एल्बम थी जिस फोटोग्राफ्स की। और कुछ टाइम मैं क्या करता था, जंगल को भी एक्सप्लोर कर देता था जो टेंट के पीछे था। मुझे अभी भी याद है कि आई वुड हैव, कि जो मैं लंच करता था वो नेबर्स के साथ करता था, इसका मतलब जो मेरे पड़ोस में टेंट लगा हुआ था उसमें जाके करता था, और नाइट में मैं अपने पापा के साथ खाता था हमेशा। और मेरे को ये याद नहीं है कि कुक कौन करता था, खाना कौन बताता था, बट मेरे को सुबह का याद है, ब्रेकफास्ट मेरे पिताजी खुद बनाते थे, और जो टेबल पे रख जाते थे, किसके साथ कॉर्नफ्लेक्स होता था, उसमें ग्रेप नट्स होती थी, और एग्स होती थी, अंडे होते थे, इसका मतलब
रोस्ट एंड फ्राइड, और उनको तोड़ा होता था और उनको फ्राई करके मेरे पिताजी थे जो खाना बना के रख जाते थे। अब उनको ये बता रहे हैं, अब वो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं बेटा। और उनको तोड़ा होता था और उनको फ्राई करके मेरे पिताजी थे जो खाना बना के रख जाते थे। अब उनको ये बता रहे हैं, अब वो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं बेटा रस्किन बॉन्ड। अभी तक हमने पढ़ा जितना उनका लाइफस्टाइल क्या था, उन्होंने बचपन में क्या क्या मुसीबतें झेली। The gramophone kept me company in my father's absence. He had kept all the records he had collected in Jamnagar and he kept buying new ones quite frequently. After a few months in the tent house and then in a brick hutment, which was even hotter, my father was permitted to rent rooms of his own on Atul Grove Road, a tree-lined lane not far from Connaught Place, which was then the hub and business center of New Delhi. Keeping me with him had been quite unofficial. His superiors were always wanting to know why my mother wasn't around to look after me. He was really hoping that the war would end soon, so that he could send me to England and put me in a good school. There, he had been selling some of his more valuable stamps and had put quite a log of money in the bank. One evening an American officer dropped in to have dinner with us. After dinner, they sat down to go through some of my father's stamp albums. The American collector bought several stamps, and we went to bed richer by a couple of thousand rupees. This taught me that it was possible to make money out of one's hobby. I followed in my father's footsteps when writing became my passion. Some Sundays, my father and I explored old tombs and monuments, but going to the pictures was what we did most. Connaught Place was full of cinemas, the Regal, Rivoli, Odeon, and Plaza, all very new and shiny, and they exhibited the latest Hollywood movies. When my father broached the subject of sending me to a boarding school, I used every argument I could think of to dissuade him. Why do you want to send me to school again? I asked. I can learn more at home. I can read books. I can write letters. I can even do sums. The gramophone kept me नाउ स्टूडेंट्स, अब वो क्या बता रहा था कि अब मैं कैसे कैसे टाइम पास करता हूँ अपने फादर की चीज़ों से। वो कह रहा है कि जो ग्रामोफोन है मेरे पापा का, वो मुझे जब मेरे पापा नहीं होते तो मेरा पूरा टाइम पास करता है। मैं उनके रिकॉर्ड्स लगा लेता हूँ जो उन्होंने जामनगर में कलेक्ट किए थे, और वो जल्दी जल्दी बाय करते रहते हैं नए नए रिकॉर्ड्स। कुछ महीनों बाद टेंट हाउस में फिर हम ब्रिक हटमेंट में रहे, और वो और भी गर्म था। माई फादर, मेरे फादर ने मेरे को परमिट किया कि हमें वॉज परमिटेड टू द रूम्स ऑफ हिज ऑन अतुल ग्रोव रोड अ ट्री लैंड। अब वो क्या कह रहा है कि अब मेरे फादर को परमिशन मिल गई थी कि जो उनका रूम था अतुल ग्रोव रोड पे, जो ट्री लाइंड लेन थी, ये कोनाट प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं थी, अब वो हमारा घर बन गया था। देन द हब एंड बिजनेस सेंटर ऑफ न्यू दिल्ली, और वो हब और बिजनेस सेंटर भी बन गया था दिल्ली का। कीपिंग मी विद हिम हैड बिन क्वाइट अनऑफिशियल, हिज सुपीरियर वर ऑलवेज वांटिंग टू नो व्हाई माई मदर वॉजंट अराउंड टू लुक आउट ऑन मी। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो मेरे को अपने साथ रखते तो ये बहुत ही अनऑफिशियल लगता, क्योंकि उनके जो सुपीरियर्स थे, जो उनके बॉसेस थे, वो उनसे पूछते इसकी मम्मी कहाँ है। तो अब वो क्या कह रहा है, बस ये वो क्या होप कर रहा था कि जो वॉर है, ये लड़ाई चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड में, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और वो इंग्लैंड चला जाए और वो कोई अच्छे स्कूल में वहाँ पे पढ़े। ही हैड बिन, उन्होंने अपनी कुछ क्या सेल कर दी बेटा, सम वैल्यूएबल स्टैम्प सेल कर दी और कुछ पैसा इकट्ठा किया अपने बैंक में, जिससे वो उसको पढ़ाने के लिए भेज सके। एक इवनिंग क्या हुआ, एक अमेरिकन ऑफिसर उनके घर आया डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद
वो वहाँ पे बैठा और उसने उसके फादर की कुछ स्टैम्प्स की एल्बम देखी। जो अमेरिकन कलेक्टर था उसने बहुत सारी जो स्टैम्प्स थी वो खरीद ली, और वो अब क्या कह रहा है, हम सोते वक्त अमीर होके सोए, इसका मतलब कुछ 1000 रुपीज़ की वो स्टैम्प्स बिक गई। इससे उन्होंने, रस्किन बॉन्ड ने क्या सीखा कि ये पॉसिबल है, ये संभव है। क्या संभव है? कि पैसा कमाना एक की हॉबी से, कि अपनी हॉबी से पैसा कमाना संभव है, यह संभव नहीं है। और उन्होंने अपने पापा के ये जो थे फुटस्टेप्स वो फॉलो किए जब उन्होंने राइटिंग अपना पैशन बनाया, कि इसका मतलब उनको राइटिंग उनकी हॉबी थी, राइटिंग लिखना, और उन्होंने बाद में पैसा बनाया उससे। अब वो ये कह रहे हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, बेटा आप यंगस्टर्स हो, आपके लिए पूरा फ्यूचर करियर पड़ा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से उनको क्या पता लगा, अपने पापा से इंस्पिरेशन मिली उन्हें कि कुछ भी करने की, कि जो भी तुम्हारी हॉबी है उससे भी तुम पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है, आप हॉबी के जब खिलाफ जाओगे तो जब भी आपको पैसा मिलेगा। कुछ संडे जो उनके फादर थे और वो थे क्या देखने जाते, पुराने पुराने टॉम और मोनूमेंट दिल्ली में देखने जाते, पिक्चर्स देखने जाते, जो कि वो सबसे ज़्यादा देखने जाते थे। कनाट प्लेस उस वक्त सिनेमा हॉल से फुल था। वहाँ पे कौन कौन से सिनेमा हॉल थे? द रीगल, रिवोली, ओडियन, प्लाजा। ये सारे नए थे, नए नए बने थे और चमकदार थे, और उनमें जो लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज़ आती थी वो लगती थी। जब मेरे फादर कहाँ गए, मेरे को सोच उसने कहाँ पे जाने के लिए, बोर्डिंग स्कूल में जाने के लिए, जब चर्चा छेड़ने लगे। ब्रोस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? चर्चा करना। ब्रोस्ट का मीनिंग क्या होता है? चर्चा करना, बात करना या चर्चा करना। अब उसके फादर जब भी किस बात पे चर्चा करते कि उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाए या नहीं रस्किन बॉन्ड पे, तो वो क्या कहता, वो आर्गूमेंट करता हमेशा, और उनको वो इस बात से डाइवर्ट करने की सोचता, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते थे। वो कहते कि मेरे को क्यों भेजना चाहते हो आप स्कूल, क्यों? ये चीज़ें तो मैं घर पे भी लर्न कर सकता हूँ, मैं बुक भी रीड कर सकता हूँ, मैं लेटर भी लिख सकता हूँ, और मैं सम्स भी कर सकता हूँ, तो आप मेरे को स्कूल क्यों भेजना चाहते हो? Said my father. But I can teach you algebra, physics and chemistry. I don't want to be a chemist. Well, what would you like to be when you grow up? A tap dancer. We've been seeing too many pictures. Everyone says I spoil you. I tried another argument. You will have to live on your own again. You will feel lonely, that can't be helped, son. But I will come to see you as often as I can. You see, they're posting me to Karachi for some time, and then I will be moved again. They won't allow me to keep you with me at some of these places. Would you like to stay with your mother? I shook my head. With Calcutta Granny? I don't know her. When the war is over, I will take you with me to England. But for the next year or two we must stay here. I've found a nice school for you. It is a prep school for boys in Shimla. And I may be able to get posted there during the summer. I want to see it first, I said. We will go to Shimla together. Not now, in April or May, before it gets too hot. It doesn't matter if you join school a bit later. I know you will soon catch up with the others. There was a brief trip to Dehradun. I remember we stayed in a little hotel or boarding house just off the Eastern Canal Road. Dehradun was a lush green place. It was surprising to see hedges in place of boundary walls around houses. The war dragged on. As soon as I was back in prep school, my father was transferred to Calcutta. In some ways it was a good thing because my sister, Ellen, was there living with Calcutta Granny, and my father could live in his own home for a change. Granny had been living on Park Lane ever since grandfather had died.
My father was unable to come to see me in Shimla during my midterm holidays. But he wrote regularly once a week, on an average. The war was coming to an end, peace was in the air, but there was also talk of the British leaving India as soon as the war was over. In his letters my father wrote a lot about preparations he was making towards the end. Obviously, he saw no future for us in a free India. Not bad for a boy. नाउ स्टूडेंट, अब वो उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, 9 साल के बच्चे के लिए बुरा भी नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ आता है, बट मैं तुम्हें अलजेब्रा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी सिखाना चाहता हूँ। तो रॉबिन क्या, ये रस्किन बॉन्ड क्या जवाब देता है कि मैं केमिस्ट तो बनना नहीं चाहता हूँ। वेल व्हाट डू यू वांट, तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, उसके पिताजी पूछते हैं। वो कहता है कि टैप डांसर। वो कहते हैं तुम बहुत सारी पिक्चर देख चुके हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, और सब कहते हैं कि मैंने तुम्हें ख़राब कर दिया, बिगाड़ दिया है। तो फिर मैं दूसरा आर्गूमेंट ट्राई करने लग गया। अब रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं कि आपको अपने आप अकेला रहना पड़ेगा और आपको अकेलापन फील भी होएगा। तो अब वो क्या कह रहा है कि बेटा इसमें कोई कुछ किसका हेल्प, कोई किसी में हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हें देखने आऊँगा थोड़े थोड़े दिन बाद, और तुम देखना कि मैं पोस्टिंग कराची में करवा लूँगा थोड़े दिनों के लिए और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। और मेरे को लगता नहीं कि वो मेरे साथ तुमको रखेंगे इन प्लेसेस पे, तो तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। क्या तुम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो? तो मैंने अपना सर हिलाया। तो वो कहता है विद कलकत्ता ग्रैनी, आई डोंट नो हर। और वो कहता है मैं इसको नहीं जानता। तो जब वो कह रहा है कि जब वार ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा इंग्लैंड, पर जब नेक्स्ट ईयर के लिए या 2 साल के लिए तुम्हें यहीं पे रहना पड़ेगा। तुम्हें नाइस स्कूल, बहुत ही अच्छा स्कूल मिलेगा। ये प्रिपरेशन स्कूल है, प्रेप स्कूल होता है बेटा। ये कॉलेज के लिए जो प्रिपरेशन करवाता है बेटा, वो स्कूल्स को बोलते हैं प्रिपरेशन स्कूल, प्रेप स्कूल बोलते हैं इसे। तो ये जो प्रेप स्कूल है ये बॉयज़ के लिए था शिमला में, यहाँ पे उसको दाखिल करवा दिया। वो कह रहा है और मैं यहाँ पे पोस्ट करवाऊँगा समर के दौरान, इसका मतलब गर्मी में। आई वॉन्ट टू सी इट फर्स्ट, मैंने कहा कि मैं पहले देखना चाहता हूँ। हम दोनों शिमला गए। अब वो क्या कह रहा है, अभी अप्रैल या मई में नहीं चलते हैं, जब बहुत गर्मी हो जाएगी उससे पहले ही चलेंगे। इट डजेंट मैटर, और ये मैटर नहीं करता कि तुम चाहे स्कूल थोड़ी सी लेट भी ज्वाइन करो। क्यों? बिट अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब देर से। तो वो कहता है देर से भी ज्वाइन करो, मेरे को पता है कि तुम सारा सिलेबस दूसरों की स्पीड से तुम कैच कर लोगे जल्दी, क्योंकि तुम्हारी ग्रैबिंग पावर अच्छी है। तो अब वो बता रहा है अब हम शिमला का स्कूल देखने जा रहे हैं। तो ये छोटी सी ट्रिप थी देहरादून। मेरे को याद है हम छोटे से होटल में रुके थे, या हाउस था वो ईस्टर्न कैनाल रोड पे। देहरादून एक लश ग्रीन प्लेस है। लश का मतलब होता है बेटा हरा भरा, घने। इसका मतलब हरी भरी हरियाली से वो ढका हुआ है। ये देखना हैरान था कि यहाँ पे हैजेस लगी हुई थी बाउंड्री की जगह, घर के चारों तरफ। हैजेस क्या होता है बेटा? लकड़ियों की या पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों से, श्रब वगैरह से चारों तरफ क्या बन जाना? फेंसिंग सी बन जाना, एक बाउंड्री सी बन जाना। तो चारों तरफ पेड़ पौधों से बाउंड्री बनी हुई थी, हाल नए ब्रिक्स की बाउंड्री नहीं लगी हुई थी बेटा। अब वो क्या कह रहा है बेटा, जो वार थी वो ड्रैग्ड होती गई। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। यहाँ पे घसीटना से मतलब है कि वो चलती रही, जो वार थी वो चलती रही बेटा। और जब मैं प्रेपरेशन स्कूल में था मेरे फादर की ट्रांसफ़र कलकत्ता में हो गई। कुछ थिंग के लिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही थी, क्योंकि जो मेरी बहन थी एलन, वो मेरे पापा कलकत्ता ग्रैनी के साथ रहती थी, और मेरे पापा भी उनके साथ अपने घर में रह रहे थे। जो ग्रैनी थी वो पार्क लेन रोड पे रहती थी जब से मेरे दादा मरे थे। जो मेरे पापा थे वो मेरे से मिलने नहीं आए शिमला में मिड टर्म जब हॉलीडेज़ हुए थे, बट वो लेटर्स रेगुलरली लिखते थे 1 वीक में ऑन एवरेज।
जो वॉर थी वो ख़त्म हो गई। अब जो सेकेंड वॉर थी, शांति बह रही थी हवा में, बट जो बातें थी वो भी चल रही थी ब्रिटिश की कि ब्रिटिश भारत छोड़ो जल्दी से जल्दी। जब क्या वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो जो मेरे पापा थे वो अपने लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखते थे अबाउट प्रिपरेशन, कि वो क्या क्या जो प्रिपेयर कर रहे हैं अब। और ऑब्वियसली वो उनको फ्यूचर नहीं पता था कि हमारा फ्यूचर क्या होगा जब देश आज़ाद हो जाएगा। Be a new school for me in England, he wrote. And meanwhile he was selling off his stamps, so that we'd have some money to start life afresh when he left the RAF. My father's last letter to me was the only one that I was able to retain apart from some of his postcards. It is a good example of the sort of letters he wrote to me, and you can see why I still treasure it. My dear Ruskin, thank you very much for your letter received a few days ago. I was pleased to hear that you are quite well and learning hard. We are all quite okay here, but I am still not strong enough to go to work after the recent attack of malaria I had. I was in hospital for a long time, and this is the reason why you did not get a letter for me for several weeks. I have now to wear glasses for reading, but I do not use them for ordinary wear but only when I read or do bookwork. Ellen does not wear glasses at all now. Do you need any new warm clothes? Your warm suits must be getting too small. I am glad to hear the rains are practically over in the hills where you are. It will be nice to have sunny days in September when your holidays are on. Do the holidays begin from the 9th of September? What will you do? Is there to be a scouts camp at Tara Devi? Or will you catch butterflies on sunny days on the school cricket ground? I am so happy to hear you have lots of friends. Next year you will be in the top class of the prep school. You only have 3.5 months more for the Christmas holidays to come round, when you will be glad to come home, I am sure, to do more stamp work and library study. The new market is full of bookshops here. Ellen loves the market. I wanted to write before about your writing, Ruskin, but forgot. Sometimes I get letters from you written in very small handwriting, as if you wanted to squeeze a lot of news into one sheet of letter paper. It is not good for you or your eyes to get into the habit of writing small. I know your handwriting is good and that you came first in class for handwriting, but try and form a larger style of writing and do not worry if you can't get all your news into one sheet of paper, but stick to big letters. There would be a new स्टूडेंट्स नाउ, अब वो क्या कह रहे हैं, ये स्कूल मेरे लिए बिल्कुल ही नया था जो कि इंग्लैंड में था, उन्होंने लिखा, और मीनवाइल वो अपने स्टैम्प्स भी बेच रहे थे। सो हमारे पास कुछ मनी था एक दोबारा से लाइफ नई जो स्टार्ट करने के लिए, जब उन्होंने, मेरे पिताजी ने RAF छोड़ी। RAF का फुल फॉर्म क्या है? रॉयल एयर फोर्स। उसके पिताजी रॉयल एयर फोर्स में थे। ये है UK, यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स को रॉयल एयरफोर्स कहते हैं बच्चे, ये शॉर्ट फॉर्म RAF की। जब वो RAF उन्होंने जॉब छोड़ी, तो जब उनके पास थोड़े से पैसे थे कि वो नई अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सके। जो मेरे पापा का लास्ट लेटर था वो ही मैं याद कर सकता हूँ, जो कुछ पोस्ट कार्ड्स उनके आए थे उसमें से। ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है कि कैसे लेटर
लिखते हैं उन्होंने मेरे को कैसे लेटर लिखा, और तो आप भी समझ पाओगे जब आप ये लेटर पढ़ोगे कि मैं अभी तक इसको खजाने की तरह कैसे सिक्योर संभाल के रखा है मैंने इसको। तो लेट्स स्टार्ट द लेटर। डियर रस्किन, अब वो उसके फादर कह रहे हैं कि मेरे प्रिय रस्किन कि धन्यवाद आपका किस चीज़ के लिए, जो आपने रस्किन बेटा तुमने क्या भेजे, लेटर्स भेजे मेरे को कुछ दिनों पहले। मैं बहुत ही खुश हूँ सुन के कि तुम ठीक हो और तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मेरे को यहाँ पे भी सभी ठीक है, बट मैं अभी इतना ठीक नहीं हुआ हूँ कि मैं काम पे जा सकूँ, क्योंकि मेरे को अभी मलेरिया का अटैक आया था। मैं हॉस्पिटल में था बहुत टाइम के लिए, और यही रीज़न है कि मैं तुमको लेटर भी नहीं लिख पाया और तुमने इतने मेरे को लेटर लिखे। मैं अब क्या चश्मे पहनने लग गया हूँ पढ़ने के लिए, और मैं ऑर्डिनरी काम के लिए उन्हें नहीं पहनता। बस जब बुक वगैरह पढ़ता हूँ या कुछ पढ़ता हूँ या बुक का काम करता हूँ तो जब भी उसे चश्मा पहनता हूँ। जो एलन है उसकी बहन है, वो कह रही है वो कभी चश्मे नहीं पहनती है। तुम्हें क्या नए कपड़े चाहिए? गरम कपड़े तुम्हारे छोटे हो गए होंगे। और मेरे को खुशी होगी ये बात सुन के, किस बात सुन के खुशी? की रेंज वो आने वाली होगी वहाँ पे हिल्स में जहाँ पे तुम हो अभी शिमला में हो, इसका मतलब। और बहुत ही अच्छा लगता है जब गर्मियों में कि सनी डेज होते हैं सितंबर के, जब तुम्हारे छुट्टियाँ चल रही होगी। क्या तुम्हारे छुट्टियाँ 9 सितंबर से शुरू होने वाली है? तुम छुट्टियों में क्या करने वाले हो? क्या स्काउट कैंप लगने वाला है ट्रा देवी में, या तुम कुछ बटरफ्लाइज पकड़ोगे सनी डेज में जब सूर्य निकला होगा ये स्कूल ग्राउंड में? मैं बहुत ही खुश हूँ सुन के कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड बन गए हैं। अगले साल तुम टॉप क्लास में हो जाओगे प्रिपरेशन स्कूल के। तुम्हारे पास खाली 3.5 महीने और बचे हैं क्रिसमस हॉलीडेज से पहले जब तुम आओगे, और तुम्हें ये सुन के घर आके तुम बहुत खुश होगे, मैं ये पक्का हूँ। कुछ और मैं स्टैम्प वर्क करता हूँ और लाइब्रेरी स्टडी करता हूँ। जो नई मार्केट है वो पूरी भर चुकी है बुक शॉप से, यहाँ पे बुक शॉप और गया। एलन जो तुम्हारी बहन है उसे मार्केट बहुत पसंद है। मैं ये लेटर पहले लिखना चाहता था रस्किन बेटा, बट मैं भूल गया बच्चे। और कुछ टाइम मैं लेटर जो तुमने लिखा लेटर पढ़ता था, जो तुमने लिखे हुए हैं, क्या देखता था उसमें कि तुमने बहुत ही छोटी छोटी राइटिंग में लिखे हुए हैं। ऐसा लगता था कि स्क्वीज का मतलब है निचोड़ देना, कि तुम बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, कि एक शीट पे ही तुम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी न्यूज़ है बताने के लिए मेरे को। तो ऐसा लगता था तुम बहुत छोटी छोटी उसमें लिखते थे कि एक शीट में तुम सब कुछ ही लिख दो। बट ये सही नहीं है तुम्हारी आंखों के लिए भी, ना तुम्हारे लिए ये हैबिट, जो छोटा लिखना की हैबिट। मेरे को पता है तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि तुम फर्स्ट आते थे क्लास में हैंड राइटिंग के लिए। बट अब मैं तुम्हें चाहूँगा कि तुम क्या ट्राई करो कि थोड़े से बड़े अक्षर लिखो, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जब तुम सारी न्यूज़ पेपर पे नहीं डाल पाओ तो, बट स्टिक टू बिग लेटर्स। कि अब उसके पिताजी क्या कह रहे हैं? उसके पिताजी ने पहले तो उसके बारे में पूछा, बेटा लेटर देखो कितने सुंदर सा से लिखा है बच्चे, यही दिखाना चाहता है हमें राइटर। पहले उसने लिखा कि ये जो मेरे को तुम्हारे लेटर मिल रहे थे, मेरे को पता लगा तुम बहुत ही अच्छे हो, यहाँ पे हम भी अच्छे हैं। उसने अपनी बीमारी के बारे में बताया, फिर अपने यहाँ की मेरे को ग्लासेस लग गया है। उसके बाद उसकी छुट्टियों के बारे में पूछा, तुम क्या करोगे छुट्टियों में, और अपनी बहन के बारे में बताया, थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के बारे में बताया। फिर उसकी जो नेगेटिव चीज़ें है वो भी बता रहा है, वो नेगेटिव चीज़ें है उसके फादर, वो भी एक ही लेटर में बता रहा है, सब कुछ बता दे रही है शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे में, कि तुम शॉर्ट राइटिंग मत लिखो, इससे तुम्हें आंखों पे प्रभाव होगा। ये It is still cloudy. At night we have to use fans, but during the cold weather is nice, not too cold like Delhi and not too warm either, but just moderate. Granny's quite well. She and Ellen send you their fond love.
The last I heard a week ago, that William and all at Dehradun were well also. We have been without a cook for the past few days. Hopefully we will get one soon. I wish I could get our Delhi cook, the old man famous for his black puddings which Ellen hasn't seen since we arrived at Calcutta 4 months ago. I have retained all the records and gramophone and most of the best books, but as they are all getting old and some are no longer suitable for you which are only for children under 8 years old, I will give some to William and Ellen and you can buy some new ones when you come home of Christmas. I am rearranging all the stamps that became loose or topsy-turvy after people came and went through the collection to buy stamps. Some got sold and the rest got mixed up a bit. It is quite time consuming to put the collection in order. But as I am at home all day, unable to go to work as yet, I have lots of time to finish the work or rearranging the collection. Ellen loves drawing. I give her paper and a pencil and let her draw for herself without any help, to get her used to holding paper and pencil. She's becoming something of an artist. She can draw camels, elephants and even dragons well. Ruskin, I hope this finds you well. With fond love from us all. Write again soon. Ever your loving Daddy. It was about 2 weeks after receiving this letter that I was given the news of my father's death. Frequent bouts of malaria had already undermined his health when jaundice set in. Mr. Murtaf was given the unenviable task of breaking the news to me. He mumbled something about God needing my father more than I did, and of course I knew what had happened and broke down and had to be taken to the infirmary, where I remained for a couple of days. I could never understand why God should have needed my father more than I did unless of course, he envied my father's stamp collection. If God was love, why did he have to break up the only loving relationship he'd known so far? I felt apprehensive about the future. What would happen to me now? Where would I live? With some relative or in an orphanage? स्टूडेंट्स नाउ आगे लेटर पढ़ते हैं उनका. वी हैव लॉट ऑफ रेन्स. अब उसके फादर बता रहे हैं यहाँ पे बारिश बहुत आती रहती है, बादल छाए रहते हैं, पूरी रात हम तो फैन चला के सोते हैं, और जब ठंड होती है थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है. बट यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती है दिल्ली की तरह, नॉट टू वार्म आइदर, और ना ही गर्मी होती है क्योंकि अब वो कोलकाता में रह रहे हैं ना उसके फादर. बट जस्ट मॉडरेट की इन बिटवीन रहती है. ग्रैनी ठीक है, एलन और वो कि तुम्हें बहुत सारा प्यार भेज रही है. और आखिर चीज़ जो मैंने पिछले हफ्ते सुनी थी कि विलियम और जो सारे थे वो देहरादून में बहुत ही ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कुक नहीं है कुछ दिनों से. मेरे को आशा है कि हम कुछ जल्दी उसको कोई कुक पालेंगे. आई विश आई कुड गेट आउट दिल्ली कुक. मैं आशा करता हूँ कि हमें जो दिल्ली वाला कुक है वो ही मिल जाए, जो वो बहुत ही बुढ़ा आदमी था, फेमस था ब्लैक पडिंग के लिए. ब्लैक पडिंग होता है बेटा, ये सुअर का मांस होता है. पिग के मीट से एक डिश बनती है, उसे बोलते हैं हम ब्लैक पडिंग. अब वो कह रहे हैं एक बुजुर्ग आदमी था जो ब्लैक पडिंग के लिए फेमस था दिल्ली में, वो मिल जाए हमें. एलन ने क्योंकि बहुत दिनों से ये खाया नहीं है, जब से हम कलकत्ता आए हैं 4 महीनों से. मैंने सारे अपने जो रिकॉर्ड्स और ग्रामोफोन है वो संभाल के रखे हैं, और जो बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स है वो भी संभाल के रखी है. वो अब पुरानी हो रही है और जो कुछ अभी तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है कि तुम पढ़ सको, क्योंकि 8 ईयर्स के जो ईयर्स के ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए है. वो मैंने विलियम को दे दिया और एलन को दे दिया कुछ,
तुम कुछ नई बुक लेके आ सकते हो क्रिसमस पे जब तुम घर आओगे। मैं अपने सारे स्टैम्प्स को सही तरह लगा रहा हूँ क्योंकि वो लूज हो गई थी। और टॉप्सी करवी, टॉप्सी करवी को हिंदी में बोलते बेटा अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त बोल सकते हो या उल्टा पुल्टा, होश पोश कि सही तरह से नहीं रखी हो। वो कह रहे हैं कि लूज हो गई थी और वो अजीब तरीके से हुई हुई थी क्योंकि जो आदमी आते थे वो देखते थे मेरी स्टैम्प को और चले जाते थे, जो भी खरीदने आते थे। तो आज मैंने रीअरेंज किया है, कुछ बिक चुकी है, कुछ मिक्सअप हो गई है थोड़ी सी। ये बहुत ही टाइम लेने वाला काम है कि इन सबको स्टैम्प्स को एक ऑर्डर में लगाना। बट मैं अब पूरे दिन घर पे ही रहता हूँ क्योंकि काम पे नहीं जाना जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि वो और मेरे पास बहुत टाइम है ये सारा काम रीअरेंज करने के लिए, ये सारी कलेक्शन को रीअरेंज करने। क्यों नहीं जा पा रहे बेटा? क्योंकि उनको मलेरिया हुआ था बच्चे, मलेरिया के कारण वो बीमार थे, इसलिए वो जा नहीं पा रहे थे कहीं भी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं एलन को ड्राइंग पसंद है, उसकी बहन को, तुम्हारी बहन को ड्राइंग पसंद है, मैं उसको पेपर और पेंसिल दे देता हूँ और कहता हूँ कि बना लो मेरी, मैं हेल्प नहीं करता उसकी भी, और वो जिससे कि पेपर और पेंसिल पकड़ना सीखे। अब वो कुछ एक तरह की आर्टिस्ट भी बन गई है, उसके पिताजी कह रहे हैं। और वो कैमल्स ड्रॉ कर देती है, एलिफेंट्स ड्रॉ, हाथी ड्रॉ कर देती है और ड्रैगन्स भी ड्रॉ कर देती है। वेल रस्किन, आई होप दिस फाइंड यू वेल। मेरे को लगता है कि इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत सारा प्यार हम सबके तरफ से। बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें दोबारा लिखूंगा। तुम्हारे हमेशा प्यार करने वाले तुम्हारे पिताजी। तो ये लेटर था बच्चे, कितना सुंदर लिखा हुआ, सब कुछ बता दिया और उसको मोटिवेट भी किया, अच्छी चीज़ें भी बताई है उसके फादर ने। इट वॉज अबाउट 2 वीक आफ्टर रिसीविंग दिस लेटर, कि 2 हफ्ते बाद ही क्या हुआ, उसे न्यूज़ मिली कि उसके पापा की डेथ हो गई है। किस चीज़ से डेथ हुई? फ्रिक्वेंट बाउट, क्योंकि बहुत दिनों से उनको मलेरिया था जिससे उनकी हेल्थ अंडरमाइंड का मतलब होता है कमज़ोर, जिससे वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गए थे। और जब उनको जॉन्डिस आया, बहुत ही कमज़ोर थे अंदर। जो मर्तो थे, मिस्टर मर्तो, उन्होंने मुझे, उनके ये टास्क थी अनएनविएबल। क्या होता है अनएनविएबल? होता है बच्चे हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अनएनविएबल को डिफ़िकल्ट। जो ये डिफ़िकल्ट टास्क थी ये न्यूज़ सुनाने की, वो किसको मिली? मिस्टर मर्तो की। उन्होंने फुसफुसाया, मम्बल्ड का मतलब होता है फुसफुसाया, कि भगवान को लगता है, भगवान को उनके पिताजी की ज़्यादा ज़रूरत थी रस्किन से ज़्यादा। और मेरे को लगता है कि क्या हुआ है, और मेरे को पता लग गया कि क्या हुआ है उनकी ये बातें सुन के, और मैं बिल्कुल टूट गया ये बातें सुन के। और मुझे इन्फर्मरी भेज दिया गया और कुछ दिनों के लिए मेरे को वहाँ पे ही रखा गया। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान को मेरे से ज़्यादा मेरे पापा की क्यों ज़रूरत होगी। मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को लगता है कि वो एनविड का मतलब होता है जलना, वो मेरे पापा के स्टैम्प कलेक्शन के काम से डरते जलते थे जो भगवान थे। अगर भगवान प्यार का नाम है, वाई डिड, तो उन्होंने मेरा ये इतना प्यार भरा संबंध मेरे पापा के साथ था इतने दिनों से, वो क्यों तोड़ा? आई फेल्ट एप्रीहेंसिव, मेरे को बहुत ही एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित। मैं अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में बहुत क्या था? चिंतित था। एप्रीहेंसिव, चिंतित, बहुत ही चिंतित था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ पे रहूँगा अब, और मेरे कि किसके साथ रहूँगा, किसी रिलेटिव के साथ रहूँगा या किसी ऑर्फनेज में रहूँगा। ऑर्फनेज में क्या रहता है? अनाथालय को ऑर्फनेज बोलते हैं बेटा, या अनाथालय में रहूँगा। अब देखो उनके फादर कितनी जल्दी चले गए थे, बट उनके फादर ने क्या बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें सिखाई उनको जीवन में, जो रस्किन बॉन्ड है। और उसी के कारण जो रस्किन बॉन्ड है कितने बड़े बेटा राइटर बने, इतने बड़े राइटर बने बच्चे वो कि उनको दुनिया जानती है। तो उनके जीवन में कितनी डिफ़िकल्टीज थी आप देख रहे हो बेटा, फिर भी वो हारे नहीं और उन्होंने क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया, चांद के बराबर अचीव कर लिया आप सकते हो। तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है बच्चे? यही सिखाता है चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट क्या हो सिचुएशन हो बच्चे, हमें किससे साहस से वो लेना चाहिए, क्या सामना करना चाहिए मुसीबतों का, डिफ़िकल्टीज़ का, किससे? साहस से अपने
दृढ़ता से सामना करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से, सिचुएशन में, और हमको एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ बेटा ये हमारा माई फादर्स लेटर रिटन बाय रस्किन बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, like, share and subscribe to our channel.